काउंसलिंग इज ए हीलिंग प्रोसेस। जो जख्म लग गया है उसको ठीक करने का प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस। With the teacher see, if you want to produce good result, यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए गाइडेंस और काउंसलिंग में, अर्थात आप चिल्ड्रन के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, उसमें अभीष्ट फल प्राप्त करना चाहते हैं उसके बिहेवियर में, you need to create awareness in guidance and counseling among other members of staff को in service। दूसरे स्टाफ मेंबर को भी बताएं कि गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विस हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। नेक्स्ट, baseline data regarding the occurrence and intensity of pupils problem। कहाँ से उसका प्रॉब्लम शुरू हुआ, किस अवस्था से शुरू हुआ, यदि दूसरे विद्यालय में था तो किस विद्यालय से शुरू हुआ, किस एज से शुरू हुआ, और उसका इंटेंसिटी क्या है, प्रॉब्लम का किस स्टेज में है। नेक्स्ट, और आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। With older children, this is most effective when done in cooperation with pupils themselves। यदि ज्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उसके पीयर का असिस्टेंस आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, now have some problem case study। You have to answer some case study। चुप होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका स्टेप उस तरफ बढ़ चुका, उसी समय से ध्यान देने की बात है। कहीं बच्चा कुछ और सोच ले, उससे पहले ही उसको चेंज कर लेना चाहिए, तभी बैक भी होने का उम्मीद है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। एक और सर ने अभी कहा था कि इम्पल्स होता है, फिजिक्स का वर्ड है इम्पल्स, और मोमेंटम, हिंदी में उसको आवेग कह सकते हैं। वो कुछ समय के लिए डेवलप हो जाएगा उसके दिमाग में, अगर वो टाइम आप चेंज कर सके, उसका रोक पाए, तो वो फिर सुसाइड नहीं करेगा। वो इम्पल्स। बच्चा के साथ फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रिमेन्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है। Environment has a significant influence on children's behavior। गरीबी है, घरेलू हिंसा है, पेरेंट्स दूर रहते हैं, बाप सेना में है, पिता सेना में है, माता टीचर है सरकारी स्कूल में, बच्चा हजारी में घूमता है, गांजा फूकता है, ड्रग एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। चाइल्ड एब्यूज बाय his or her peers, child abused by his relative, his or her relative, child abused by teachers, is a very serious problem। Next, वही है पॉवर्टी, गरीबी। नेक्स्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, माँ बाप बाहर, घर से बाहर रहते ज्यादा समय तक। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। The onset of puberty, very vital, crucial period in the life of a child, whether he is male or female. At about the age of 11, marks essential changes occurs in that adolescent students. They change physically, psychologically, socially, emotionally, and that kind of children are called adolescent.
Adolescence is generally viewed as a time of the greatest stress when compared to other periods of life. At this stage, we emotionally, mentally, intellectually, physically, emotionally changes. And that period is said to be crucial period in the life of that individual. Next, how we can maybe modify, change, bring favorable changes in children, positive reinforcement. Idhakarji, please listen carefully. Extension or ignore technique, we have to take use of, take benefit of. Technical benefit, digital benefit, modeling technique, how we should deal with to modify. We have to model a technique. Punishment technique, whether control, no control punishment. Nowadays, psychologist says that no physical punishment, control punishment be given to any children. Negative reinforcement technique. These are different. Make a concise recap of the major theme to build a reflective summary. Summary आपको लिखना होगा. बच्चा ने क्या कहा, ऊपर नीचे बोला, जंबल डोमेन में बोला, आपको उसको सिलसिलेवार क्रम से sequentially you have to write. Next, paraphrasing skills. Summarize your discussion with the pupils in your own words. This is known as paraphrasing skill. This enables to check that you have got the right impression at the stage. If you feel that some points are not exploitation he or she has suffered, you have not to tell anybody else. Able to show empathy, not sympathy, empathy. जैसा वो फीलिंग कर रहा है अपने परिस्थिति में, अपनी समस्याओं के कारण, वैसा ही आपको भी महसूस होना चाहिए कि आप उस परिस्थिति में हैं, वैसा ही फीलिंग करें. Able to inspire confidence in others. दूसरे में आप दूसरे को मोटिवेट कर सके, विश्वास जागृत कर सके. These are the qualities of a good counselor. Able to make referral to make competent people. यदि आपसे संभव नहीं हो रहा है, इसको रेफर कीजिए. नेक्स्ट, किसी भी ये आवश्यक नहीं कि हम आपके जैसे दिखें, बस हम आपके साथ रहें, यह आवश्यक है. मतलब ये कि कंपेयरिंग, हम आपके जैसे दिखें और हम आपके साथ रहें, मतलब कि हम एलाइज करें, आपको दिक्कत नहीं हो अपनाने में, हमको दिक्कत नहीं हो अपनाने में. पहला था इन्हीं डिग्री दिमागों में घनी खुशियों के लक्ष्य हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि हमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. हम जैसे हैं वैसे हम अच्छे हैं. अगर दूसरे को लगता है कि हम पागल हैं तो हम पागल ही अच्छे हैं. अगर ऐसी मानसिकता बना ली जाए तो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा. किसी ने सही कहा कि हम अपनी खुशियों को अपने बच्चों में देखते हैं, भैया बहनों में देखते हैं. There are many pleasures that can be deserved by the students. As a student, जब आप किताब लेकर उस बेंच पर बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं. Social, relational, familiar and peer pressure. There are 4 types of pressure. किसी बच्चे का 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या हुआ, तो हमारे चंद्रिका जी कहते हैं जितेंद्र जी का बेटा डॉक्टर बन गया, अभी तक तुम पिछले बार जो है कम नंबर लाए, अभी नहीं लाए, ऐसे नहीं किए. जितेंद्र जी का बेटा एक बार में डॉक्टर बन गया. बेटे को कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा जितेंद्र जी का बेटा डॉक्टर बन गया. आपने प्रेशर नहीं दिया. भगवान ने 100 अपने भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है. हमारे यहाँ पढ़ने वाले भैया 1860 में
या 1960 में एक भी एक दूसरे के जैसे नहीं है। हम जितने आचार्य बंधु यहाँ हैं उसमें से भी कोई एक दूसरे जैसा नहीं है, न नेचर, न सिग्नेचर, न चेहरा। फिर हम उस बच्चे से उम्मीद कैसे लगाते हैं कि एक 95% और 40% से हो जाएगा। तो हम भी तो प्रेशर पाते हैं ताकि हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, ताकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो बेसिकली जब सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ एक जैसा नहीं है, तो फिर एक जैसा सोचना है। ऊपर वाले ने एक जैसा नहीं बनाया, ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया, तो फिर अलग अलग ही रहेगा। प्रेशर हमारा रहता है, अभिभावकों का रहता है, ये बात सही है। लेकिन उन प्रेशर को झेलने के लिए पुराने जमाने में, आपके जमाने में ज्वाइंट फैमिली होती थी। और मुझे याद है मैं जब 3rd क्लास में पढ़ता था तो मेरे टीचर ने पूछा कितने भाई बहन हो, मैंने कहा 4। फिर अगले क्लास में पूछा, मैंने कहा 7। आज भी मुझसे लोग पूछते हैं कितने भाई हैं आप, मैं कहता हूँ 7 भाई और 4 बहन। हंसते हैं। जब ज्वाइंट फैमिली थी तो सुसाइड्स नहीं हुआ करते थे, रिलेशनशिप था। उस समय फेसबुक नहीं था। ज्वाइंट फैमिली में ये सैक्रिफाइस सिखाया जाता था। एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाता था, लेकिन सैक्रिफाइस रहता था। वो मेरा छोटा भाई है, ये मेरे अंकल है। और आज क्या है, बच्चा से पूछे ये कौन है, तो ये मेरा चचेरा भाई है, और ये मेरा अपना भाई है। झगड़ा किससे, तो कुछ दिन के बाद अपने भाई से। चचेरा भाई मित्र हो जाता है बड़ा होने के। That is the major family, यानी कि फैमिली भी एक तरह से, सोसाइटी भी एक तरह से, और इन्वायरमेंट भी एक तरह से सुसाइड की तरफ ले जा रहा है इंसान को, क्योंकि उसमें अकेलापन आ रहा है। अगर आप किसी मित्र से, ऐसा बहुत कम ही मित्र हैं जिनसे हम सारी बातें शेयर करते हैं, एक स्टूडेंट से सारी बात, एक क्लास का मैंने इंटरव्यू लिया 10th क्लास का, पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जब आप रिजल्ट लेके जाते हो तो पेरेंट्स को दिखाते हो, 25%। सेकंड क्वेश्चन मैंने किया कि 25% बच्चे पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाना पसंद करते हैं। उसमें से मैंने पूछा कि कितने ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स डांटते हैं रिजल्ट देने के बाद। 90% ने हाथ उठा दिया। बस 2-3 बच्चे बोले कि नहीं हमारे पेरेंट्स नहीं डांटते हैं, ना कुछ बोलते। हकीकत है, जो समझदारों में नहीं बोलते। मैंने बोला कि रिजल्ट ले जाने के बाद कितने लोगों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हुआ। 60% बच्चों ने इंप्रूवमेंट के लिए हाथ उठाया। मैंने आपको जो इंप्रूवमेंट हुआ उसमें आपको गिफ्ट क्या मिला? बच्चे ने कहा कि हमको गिफ्ट मुझे क्या मिलेगा, 50 से 60 बढ़ गए फिर भी वही डांट मिला, 60 से 65 पे जाते हैं फिर भी वही डांट मिलता है, और गार्जियन हमको साइलेंट कर देते हैं। कहते हैं कि डांटने से जो है रिजल्ट बढ़ता है। भैया मैं कहता हूँ अपने अभिभावकों को कि कभी कभी जब रिजल्ट बढ़े तो नहीं कुछ ना कुछ अच्छे जगह ले जाकर खाना खिला दे किसी होटल में, या फिर कोई गिफ्ट दिया करें। आप 5% पर गिफ्टिंग करोगे, आपका बच्चा हर वर्ष 10% एक्स्ट्रा लेके आएगा। दैट इज द लॉजिक। स्ट्रेस कम होगा, सैटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। तीसरा, अब आगे बारी आती है कि जब रिलेशनशिप की बारी आती है, जिस तरह एक माँ को पता होता है कि प्रवेश करते हुए बच्चा जो है पता चल जाए, तो हमको भी क्लास में पता होना चाहिए कि हमारे 60 बच्चे हैं, तो मदर फादर से पहले टीचर, क्लास टीचर को पहले पता होना चाहिए कि क्या गलतियां हो रही हैं, कहां पे जा रही है बातें। सुसाइड करने के जो कॉजेस हैं, नथिंग शेयरिंग, डिपेंडेंसी, सेल्फिशनेस, सबसे ज्यादा सेल्फिशनेस। हम सेल्फिश हो गए हैं। मेरा बच्चा कमाएगा तो हमको देगा, नहीं आपने अपने परिवार को देगा, आपको आपका बच्चा क्यों देखेगा भैया, वो अपने लिए है। फिर हम आगे की बात हम करते हैं
तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों से पूछा गया कि आपका कंपनी जान, तो मेरी माँ कर दिया फलाना भैया डॉक्टर है, बगल का भैया, रिलेशन का भैया, फलाना पिछले साल का टॉपर हुआ तुम्हारे बगल का, तुम्हारी मौसी का लड़का ये है, माँ कर दिया है, पिताजी कहते हैं तुम्हारे अंकल का बेटा ये है। हम कहे कि जस्ट पढ़ाना है हमको, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयर ही करना। मैंने पूछा कभी पापा से कहा कि बगल वाले अंकल जो हैं स्कूटर से चलते हैं, आप BMW और मर्सिडीज से क्यों नहीं चलते? मैं खुलेआम क्लास में कहता हूं, आपने कभी जब गार्जियन आपसे कंपेयर करते आपने कभी कहा? उस समय गार्जियन कहेंगे कि ये टीचर क्या पढ़ाता है। भैया आप अपने बच्चे को कंपेयर बगल वाले से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा आपका कंपेयर कर दिया बगल वाले से कि बगल वाले अंकल अगर 4 चक्का से चलते हैं, आप स्कूटर से चलते हो, तो बच्चा खराब हो गया। आप खराब नहीं है, बच्चा खराब हो गया। Either working with the parents, parent must be trained like us. Training doesn't require only to teachers. Parents also be trained. Not only parents, the members of managing committee, how to deal with such a matter. They must be trained. This involves either working with parents or a number of family members in a session to ensure family support. This is called बच्चा क्यों खराब होगा? जिस दिन आप दूसरे से अपने बच्चे को कंपेयर करोगे, उस दिन आप सोच लो कि आपका बच्चा कभी अच्छा नहीं होगा। चाहे कोई हो, कंपेयर नहीं करना, प्रोग्रेसिव करना, और साथ में मेंटल टॉनिक बच्चे को देते रहना। मेंटल टॉनिक जस्ट लाइक ए फैमिलियर बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। हमारे जमाने में बच्चे अधिकांश लोग माँ से ही बातें करते थे, मुश्किल रेयर केस में फादर से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि फादर वहां बोल रहे हैं, एक साइड में बैठे हैं। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। जो गार्जियंस नहीं बैठते हैं उनको बैठना चाहिए। अगर हम संपर्क में जाते हैं तो बताएं, अन्यथा सुसाइड तो होना स्वाभाविक है। आजकल फैमिली में बहुत अच्छा हुआ कोरोना आया, कम से कम लोग एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ बैठ के भोजन किए। एक बार की बात है, मैं जननायक एक्सप्रेस जा रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक फोटो स्टेट रिफ्लेक्स एक स्टूडियो था। रात में बोले कि सर मेरा बच्चा जाने की राजकुमार, मैं विद्या मंदिर पढ़ाता हूँ, रात में 8 बजे वो जननायक एक्सप्रेस है। मैं बोला कि आप क्या करते हैं? तो मैं फोटोग्राफी करता हूँ। मेरा बच्चा सर बहुत बिगड़ा है। अपने आप अपने बच्चे के साथ कितना टाइम देते हैं? बोले कि सर मेरा तो ड्यूटी है, अभी देखिए रात में जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह में उठेंगे, बच्चा स्कूल चला जाएगा। हम बोले आप कितना टाइम देते हैं अपने बच्चों के? बोले कि फिर वो हम रात में सामने 6 बजे के बाद दोस्तों के साथ रहते हैं, और रात में जो है तो फिर जाएंगे, तब तक वो चला जाएगा। माँ को बहुत तंग करता है, घर में पढ़ता नहीं है, मारपीट करता है। हम बोले भाई साहब सबके जड़ में आप हैं, आपका बच्चा नहीं है। आप जब भोजन करते हैं तो आपका बच्चा सोया रहता है, चाहे किसी टाइम हो। बच्चा तो समझता है कि हमारे पिताजी अच्छा अच्छा खाते हैं, हमको नमक रोटी खिला रहे हैं। बाहर से खाना खा के आप जाते हैं ना? तो हाँ, आप अपने रूटीन को चेंज कीजिए। कम से कम रात का खाना अपने बच्चों के साथ खाइए। यानी कि जब हम शेयरिंग करेंगे तो ऑलरेडी सुसाइड कम हो जाएगा। दो बच्चों को बताइए कि अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करना सीखें। कोई कुछ न हो, कम से कम मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जो भी भड़ास है वो निकालने का मौका मिलेगा। जब तक भड़ास नहीं निकलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, और जब तक वो भड़ास जो है धीरे धीरे जो है, जो सुसाइड करते हैं कहते हैं सुसाइड इज द परमानेंट सॉल्यूशन। सुसाइड इज द परमानेंट सॉल्यूशन, प्रॉब्लम टेम्पररी। यानी कि टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। प्रॉब्लम टेम्पररी है, फिर भी मैं सुसाइड कर रहा हूं। वो सुसाइड उसका हल नहीं है, लेकिन वो जो सोचता है कि ये दैट इज द परमानेंट सॉल्यूशन। आफ्टर द डेथ स्टार्स आर देयर, मतलब कि मैं जब डेथ करूंगा, डार्कनेस होगा, तो वहां स्टार्स मिलेंगे। इसलिए वो सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि उसका कोई अपना आसपास में है जिसको वो सारी बात बता सके।
तो कम से कम हम बच्चों को बताएं कि अपनी बातें अपने माता पिता को बताएं, अपने गुरुजन को बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसका कोई लेवल नहीं है, 0%, 80%, 100%, कोई लेवल नहीं है। अच्छा खासा आदमी जॉब करता है, आदमी सुसाइड कर लेता है, कोई किसी अच्छे फॉर्म में सुसाइड कर लेता है, कोई यहाँ तक कि मजदूर सुसाइड कर लेते हैं। तो कॉजेस क्या होगा ये नहीं है, कॉजेस मात्र एक है कि वो जो है सो शेयरिंग प्रॉब्लम है थोड़ी सी। धन्यवाद आप लोगों को। किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। मेक रेफरल, कोई बच्चा सुधर नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, उसको किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इत्यादि को रेफर नहीं करेंगे। ये नहीं कि उसको लेकर उस केस को खराब कर देंगे। क्लास का छात्र है प्रियेश एंड इज एवरेज स्टूडेंट, 50-55 ऐसा मार्क्स आता है, एवरेज स्टूडेंट है, खराब भी नहीं है, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है। The son has lost her mother in his early childhood. प्रियेश अपनी माँ को खो चुका है, उसकी माँ मर चुकी है, जब वो बच्चा था उसकी माँ मर चुकी है। Once his father gave him his ATM card to draw money. To pay school fee. जो अपनी बात बता रही है उसके बारे में आप कैसा उसको उत्तर दे रहे हैं? Reflecting back. How you reflect back the query of student, whatever student has said to you. This is known as reflecting skill. After the pupil has gone, you need to reflect the रखने के लिए अलमीरा, a bulletin board to display educational material in guidance and counseling, कौन से material चाहिए, गाइड और काउंसलर का टाइम टेबल बनाना होगा। नेक्स्ट, गाइडेंस और काउंसलिंग से क्या रिजल्ट मिल सकता है? फ्रूटफुल रिजल्ट। अपॉइंट ए कमिटी अमॉन्ग द टीचिंग स्टाफ and select teachers who are interested in guidance and counseling. टीचर का सिलेक्शन कर लेंगे, कौन से टीचर इंटरेस्टेड है। Includes support staff to if school is boarding, कर्मचारी बोर्डिंग स्कूल है, सपोर्ट स्टाफ भी लेंगे, वार्डन इत्यादि इत्यादि। इन सर्विस टीचर, सपोर्ट स्टाफ। नेक्स्ट मेकिंग रेफरेंस, वही बात है, फ्रॉम टाइम टू टाइम यू विल कम अक्रॉस केसेस यू मे फील that you cannot handle it, then immediately refer that cases. अभिभावक को बताएं कि आप what are different skills we have, a counselor should have. First, counselor must be active listener. He must listen very patiently the problem, whatever the child is saying to him. Next, counseling. There might be group counseling or individual counseling. व्यक्तिगत रूप से किसी बीमार बच्चे को आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज कॉल्ड इंडिविजुअल काउंसलिंग। नेक्स्ट, please take your seat now. I have some conversation about guidance and counseling. मार्गदर्शन और परामर्श in Hindi. Guidance can be defined as developmental process. Guidance enhance, please silence. Chandrika ji, what guidance is done? Guidance is done to enhance the talent of student. Guidance is done to understand their shortcomings. जिस समय हम लोग पेपर दे रहे थे, फर्स्ट डिवीजन तक कोई नहीं पूछता था, ये पूछा जाता था कि किस अटेम्प्ट में पास हुए हो, क्योंकि जनरली 2 बार 3 बार बच्चे क्रॉस करने के बाद 10th और 12th पास होते थे। लेकिन ये तय था कि 10 और 12 पास होने के बाद उस समय के ज्यादातर बच्चे आज के समय में सफल हैं, जहां भी हैं सफल जीवन जी रहे हैं।
tips for planning career. Next. जब तक वो फिर मोमेंटम नहीं आएगा या इम्पल्स नहीं आएगा, यह ज़्यादातर स्टूडेंट्स में इसलिए देखा जाता है, कुछ लोगों ने भी तुरंत कहा कि एग्जाम से पहले भी सुसाइड कर लेता है, एग्जाम के दौरान सुसाइड कर लेता है, रिजल्ट निकलने से पहले सुसाइड कर लेता है। डर है उसके मन में, फादर या पेरेंट्स ने इतना खर्च किया, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमको इतना फैसिलिटी दिए हुए हैं, हम तो इतना कर नहीं पा रहे हैं, इतना आएगा कि नहीं आएगा, एंड सो ऑन। और इस तरह से उसकी समस्या बढ़ती जाती है। समस्या बढ़ने से मतलब है डीप डिप्रेशन में जा रहा है। अगर ये समय चेंज हो पाता है तो बच्चे को बचाया जा सकता है, ऐसे मेंटलिटी से उसको निकालना। हम टीचर्स या गार्जियंस मेन रोल में होते हैं। कोई प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकता है, लेकिन मेन काउंसलर टीचर्स और पेरेंट्स ही हो सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकता हो बच्चा, उसकी बात को फॉलो करेगा। इसलिए वैसे सिलेक्शन वैसे आदमी का करना होगा कि उससे कौन बात करेगा। ऐसा नहीं कि सब पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा चाचा, पूरा मौसा लग जाए तो वो और समस्या में आ जाएगा। कोई एक आदमी बात करे, हर हमेशा भी बात नहीं करे। इस तरह से कुछ फायदा हो सकता है। सोचने वाली बात जरूर है सोसाइटी में। उसमें से काफ़ी टैलेंटेड बच्चे भी ऐसे हैं जो उम्मीद था उसको कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे या स्टेट टॉपर बनेंगे, वो नहीं बन पाया, 2-4 नंबर के लिए छूट गया, तो भी वो सुसाइड कमिट कर लेता है। डेंजरस संभालना होता है। अरे इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, और भी चीज़ है, ढेर सारी चीज़ है। अगर इंटरमीडिएट भी करता है कोई या ग्रेजुएशन करता है तो बीसियों उसके पास दरवाजे हैं इंजीनियर डॉक्टर्स को छोड़कर, और अच्छे भी हो सकते हैं। उनको ये सब समझाने से फायदा हो सकता है। थैंक यू। ऐसा कैसे संभव है? बादल के सहारे खत कैसे चले? लेकिन वर्तमान समय में जब बिना किसी वायर के, बिना किसी तार के आपका मोबाइल पे, आपके एमएमएस पे जब लाइव फोटो करता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि उस कवि की कल्पना की गई। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए निश्चित रूप से शिक्षा प्रणाली को या सरकार को, हमारे अभिभावकों को, सभी लोगों को और शिक्षकों को ये प्रयास करना चाहिए कि ये बीच का जो रास्ता है बच्चों से वर्तमान परिवेश को जोड़ना, उनके ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं बनाना, ताकि उनको महसूस हो कि बिना किसी ऐसे ओहदे पर गए बिना भी जीवन जिया जा सकता है। बातें बहुत सी है, लेकिन मुझे लगता है कि समय नहीं है, इसलिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। करता है कि आप अपने मेमोरी को किस जीबी का या किस टीबी का बना रहे हैं। आपने 156 में एक दिन आपने ब्लॉक कर दिया कि आपकी मेमोरी इतनी नैरो कर दी जाए। बात कर रहा हूँ शारीरिक बीमारी में, वैसे बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट। How we should plan guidance and counseling services. कहाँ गाइडेंस और काउंसलिंग चाहिए? सिंपल बात है, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, एक रूम रखेंगे, फिजिकल फैसिलिटी क्या अवेलेबल है, एक रूम, टेबल, चेयर, एक काउंसलर के लिए चेयर 3 या 2, यदि अभिभावक को भी बुला रहे हैं बच्चों के साथ, बीमार बच्चों के साथ, तो 2 चेयर, साउंड फ्री, साउंड प्रूफ रूम चाहिए। नेक्स्ट। गाइडेंस और काउंसलिंग को आइडेंटिफाई करना ही है। रोज 3 प्रतिदिन
हम ऐसे we come across such a children which causes problem to us in classroom, inside classroom as well as outside the classroom. It is very easy to identify guidance and counseling needs. Which children need guidance or counseling? Next. वही बात में लिखा हुआ है, फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, रूम चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, रिकॉर्ड। 2-3 बच्चे हैं तो सभी एक समान नहीं है। ये इस बात को प्रमाण करता है कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से या जेनेटिक रूप से इनबिल्ट टैलेंट होता है। जिस बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना है वहीं जाएंगे। शिक्षक को चाहिए कि उस बच्चे के अंदर से उसकी प्रतिभा को पहचाने, ऐसा मेरा मानना है कि उस प्रतिभा को पहचाने और ये जानने का प्रयास करें कि वो बच्चा क्या करने को इच्छुक हो या आगे जाके क्या कर सकता है। अभिभावक के लिए आगे घूमो और पीछे खाई वाली सिचुएशन है। उनको समाज में ये दिखाना है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, तो उनको अपने बच्चे से उम्मीद ज्यादा है, इसलिए आमतौर पे बच्चे को डांटते बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं। इसमें उनका भी दोष नहीं। आप बच्चे को कुछ परामर्श देंगे कि तुम्हारे पास ये चॉइस है, you have such a multiple choice and the student will opt out of the multiple choice. बच्चा उसमें से चुन लेगा। Next. What is the importance of guidance and counseling? It helps to build interpersonal relationship, development, holistic development is promoted due to guidance and counseling. And due to guidance and counseling, academic performance of children is improved. Next. Time is limited, don't worry. What are our roles? As a teacher, what are our roles? We should plan guidance and counseling services in our schools. एक नहीं, दो नहीं, एक टीम बन जानी चाहिए स्कूल में गाइडेंस और काउंसलिंग करने के लिए प्रत्येक स्कूल में, और वो टीम गाइडेंस और काउंसलिंग सेवाओं को उपलब्ध करवाएगी। It will make available to children, any children जो बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, जिन्हें गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत है। उसको ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते, और अगर शिक्षक के बदलने से बच्चे बदलते, मुझे लगता है, या शिक्षक के पढ़ाने से बच्चे पढ़ते, तो एक क्लास में एक साथ कोई रियायत है नहीं। इसलिए पुराने समय में भी जो शिक्षा प्रणाली है, उसको मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसको निश्चित रूप से करेंट सिनेरियो या आपके इन्वायरमेंट से, वातावरण से जोड़ने का प्रयास करना ही एकमात्र उपाय है। जो थ्योरेटिकल आप पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उसका प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए कि आप जिस जगह पे हैं उस चीज को प्रैक्टिकली आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसका हुनर देना है, ताकि उसके दिमाग में ये जरूर आए कि जो बच्चे डॉक्टर नहीं हैं वो भी जीवन जीते हैं, जो इंजीनियर नहीं हैं वो भी जीवन जीते हैं। जितने बच्चे हैं भारत में, या जितने हम सभी हैं, हम सभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन हम सभी ठीक ठाक लाइफ, बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। तो ये उनके दिमाग में भरना होगा कि जिस स्तर पे भी जाए, इसके एक मुझे पंक्ति याद आती है रामधारी सिंह दिनकर साहब की। एक बार उन्होंने कहा था कि एक हाथ में कमल, कमल जो हमारे स्वच्छता का प्रतीक है, एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में धर्म विज्ञान लेकर उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। अगर वर्तमान शिक्षा प्रणाली को, साइंस को, अगर हम अपने आर्ट के साथ, हम अपने कल्चर के साथ, हम अपने ट्रेडिशन के साथ अगर अप्रोच करें, अगर उससे कनेक्ट करें बच्चों को, जैसे मेघदूत में हमारे किशोर जी बैठक में मैंने ऐसा पढ़ा है कि मेघदूत में
कालिदास ने लिखा कि यक्ष अपनी प्रेमिका को बादलों के सहारे खत भेजता है। ये मेघदूत की बात है कि यक्ष अपनी प्रेमिका को बादलों के सहारे खत भेजता है। तो विज्ञान के लोग उस पे हंसे। पूरा पूछिए। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर, ए गुड लिसनर, प्लीजेंट एंड वार्म facial expression, और a counselor should have pleasant and good मृदुभाषी, pleasant, वार्म, गर्मजोशी से बच्चे का स्वागत, क्या बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्या बताओ तुम्हारे माता पिता कैसे बिहेव करते हैं, तुम्हारे पीयर दोस्त कैसे बिहेव करते हैं, वार्म वेलकम है टू गिव एबल टू डिस्कवरी से रिकॉर्ड, उसके साथ एक दोस्ताना मित्रवत संबंध बनाए या वार्तालाप टूटे नहीं। ये नहीं कि आप कुछ क्वेश्चन 35, 40, 50 बिलो एवरेज बच्चे हैं। ऐसे बच्चे को उनके अभिभावक दिल्ली, कोटा, मुंबई, पटना भेजे। ऐसा आप बहुत देखे होंगे, आप जानते हैं। ये अभिभावक के ऊपर दबाव नहीं है तो क्या है, इसको क्या है? अभिभावक को पता है कि बच्चा बिलो एवरेज है, फिर भी सोसाइटी को दिखाने के लिए या समझाने के लिए कि मैंने अपने तरफ से प्रयास किया, मैंने अपने बच्चे को कोटा, दिल्ली, पुणे, पटना भेजा, ये दिखाने के लिए अभिभावक अपने बच्चे को इन जगहों पे भेजकर एक उम्मीद जगाते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से भी बच्चा चेंज हो जाए। उद्देश्य बस एक ही होता है कि बच्चा मेरा किसी तरह सफल हो जाए, समाज की नजरों में सफल हो जाए। और ये सफलता का पैमाना क्या है, ये अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ज्यादातर होता है, जो मेरा मानना है। इसलिए वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट को